चले चलो. So first, as usual, formula revisions, and we'll do problems on commercial unit of energy, electricity. ठीक है. So our formula start from right from number 1. Voltage is equal to work done over charge. Number 2, current I is given by Q by T. Then 3, Ohm's law, V by I is equal to R. Then resistivity, resistance R equal to rho L upon A. Then number 5, equivalent resistance R equivalent in series is given R1 plus R2 plus dot dot Rn. And then number 6, R equivalent in parallel is given as 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 dot 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 1 by Rn. ठीक है, इतना तक हम कर चुके थे. Then we went for power. So power is given as the product of voltage into I. Power can also be equal to I square R. Power can also be equal to V square by R. Then we came to unit of energy. So the unit of power is energy per unit time. Energy per unit time is known as power. Okay, energy per. So from here we can also say, so यहाँ पे ये भी लिख दो, power is equal to energy upon time. और यहाँ चेंज करते हैं. Here we'll write energy E is equal to power into time, which is also equal to VI into T. यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. Then number 9 is commercial unit of energy. Commercial unit of electric energy or electricity or energy is known as K small w capital H. So 1 kilowatt hour is 1000 into watt means joules over second into hour is 3600 seconds. Second ने second को काट लिया, तो this is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules, 1 kWh. And 1 kWh is also known as commercially 1 unit. So we'll do today problems based on kWh, commercial unit, typically the consumption of power at home. Okay, the consumption of power at home. So let us try and understand now how to do these problems. So let's take some domestic appliances. Okay, let's take some domestic appliances, and our domestic appliances are very common. Is say we have a bulb, or let's be more modern, we have tube lights. Iron to come time jalta hai. We have tube lights. This bulb is the bulb which is outside in our utility area or somewhere near our garage. Then say we have got something called fan. Okay, a bulb is usually say a 100-watt bulb. We have a 20-watt tube light, and we have something called a 65-watt fan. Now we should understand how the pricing is done. So you purchase energy, right? We purchase energy. So we will be purchasing energy, and you purchase energy from someone who is known as a DISCOM. DISCOM means distribution company. Okay, DISCOM stands for distribution company, the electricity distribution company. In India, these companies are government regulated. Abroad they are private. However, in Bombay, if you go, you will get Tata Power and Reliance Power. So Bombay has got private distribution companies also. So the distribution company will be selling you power. So they sell you power, and they are selling you power at different rates. There is a commercial slab. Okay, these are for general knowledge. Then there is domestic slab. In our level we'll be doing only domestic calculation. Domestic slab. And let's say the domestic slab that they are billing you right now is say rupees 8 per unit. Means they are selling you energy. Okay, what are they selling you? They're selling you energy. So this should be rupees 8 per kWh, because kWh is the measure of energy. ये समझ में आया? So they are selling you energy. हम डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से एनर्जी खरीदते हैं, और एनर्जी कैसा रहता है? हम डोमेस्टिक में खरीद रहे हैं 8 रुपया प्रति यूनिट. यूनिट मीन्स 1 kWh, because this is what we studied in our last class. So these are the appliances we have in our house, and let's see our one day pattern.
यूजेज पैटर्न, एक यूजेज पैटर्न को पहले देखने की कोशिश करते हैं। एंड वंस यू नो दिस टेक्निक यू विल बी एबल टू डू एवरी प्रॉब्लम। वन डे यूजेज पैटर्न, मान लो हमारे यहाँ पे जो बल्ब है ना वो ओवरऑल रात को 10 घंटा जलता है, 10 आवर्स ये बल्ब जलता है। ट्यूबलाइट्स ऐसा है कि ये भी 10 घंटे जलते हैं, लेकिन फैन कुछ मिला उला के 5 घंटे चलते हैं। दिस इज वन डेज यूजेज पैटर्न। ठीक है, समझ में आया? So this is one day's usage pattern. So let's now start finding out, do it like this. See, appliance, and let's see their power, and let's see their usage. This is usage is in R, okay? Power is in watt. So we should see the energy consumption. Energy consumption. ऐसे सीखेंगे तो सब सीख जाएंगे, energy consumption. And since we are interested about, अच्छा आपको भी सवाल पूछेगा in exam, the question will come, sir I was asked to calculate energy, should I calculate in kWh or joule? If it is related to any appliance और रुपए पैसे का मामला दिखता है क्वेश्चन में, always kWh, right? So energy consumption we will be doing in kWh. Let's see one data, ठीक है? और यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ तक ये हो रहा है, यहाँ मंथ का देखेंगे, मंथ का, एंड विल से मंथ में हमारे पास 30 डेज है फॉर एग्जांपल। और ये क्या है बेटा, ये जो हम देख रहे हैं ये हम देख रहे हैं डेली का डेटा। डेली मीन्स डेली तो नहीं बोलेंगे, वन डे यूजेज पैटर्न लिखा हुआ है, एक दिन का यूजेज पैटर्न देखते हैं। सबसे पहला अप्लायंस, सीरियल नंबर, ओके। सबसे पहला अप्लायंस कौन है? बल्ब की वोल्टेज कितनी है? 100 वॉट। बल्ब जलता कितना है? 10 घंटा जलता है, 10 आवर्स। अब एनर्जी कंजम्पशन ये देखो, ये kWh में लाना है हमें, ठीक है? तो हमने 100 को लिया और उसको मल्टीप्लाई किया 10 से, हमारे यहाँ पे आंसर क्या आया? WH आया, W और H आया, है ना? 100 को लिया, 10 से मल्टीप्लाई किया तो WH हुआ। अब K भी लाना है, K लाने के लिए K कैसे आता है? वॉट को एक्चुअली किलोवाट में करना चाहिए था, पर आपने तो वॉट लिखा, आप इसको 1000 से डिवाइड कर दो। ये बेटा दर्शिका ये समझ में आया आपको? देखो हमने वॉट को आवर से मल्टीप्लाई किया तो 100 into 10 ये वॉट आवर हुआ, लेकिन हमें किलोवाट आवर चाहिए 100, तो किलो करने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना? हाँ, तो ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 1 kWh हो गया। एक दिन का फैन का लाइट बल्ब ने हमारे कितनी बिजली खा ली? 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर इज 1 यूनिट, ठीक है? अब दूसरा वाला अप्लायंस देखते आ जाओ। दूसरा अप्लायंस है ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट कितने का है बेटा? 20 वॉट का है। देखो कितना अच्छा है, एलईडी वगैरह चलाओगे तो आपका कंजम्पशन कम आएगा इसमें, ठीक है? ये 20 वॉट का है, ठीक है? ये कितना देर चल रहा है? 10 घंटा चल रहा है। तो इसका कैसा हो जाएगा? 20/100, ये किलोवाट हो गया हमारा, 1000 किलोवाट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 10 के साथ। तो ये हमारा कितना हो गया? कितना हो गया बताओ? इससे चला गया, इसका इससे चला गया, हाँ 0.2 kWh। देखा? अब तुम मुझे बोलो ट्यूबलाइट की रोशनी अच्छी होती है कि नहीं? जबरदस्त रोशनी होती है। और आप एनर्जी कितना कंज्यूम कर रहे हो? 0.2, और यहाँ पे 1 यूनिट 1/5 कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन रोशनी उतना ही अच्छा आ रहा है, ठीक है? अब चलते हैं तीसरा कौन है? फैन, ठीक है? फैन को हमने कितना देर चलाया? 65 है ना? काय को इतना लफड़ा? सीबीएसई के प्यारे बच्चे हो तुम लोग, दहेज में आए हो सीबीएसई में, 60 वॉट ले लो, 65 में कैलकुलेशन गड़बड़ होगा। फैन 60 वॉट का है, कितना देर चलता है? सर 5 घंटा चलता है, ठीक है ना? तो फैन का ले लो, 60 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 5 घंटा चलता है, ठीक है ना? कितना हो गया बेटा? 1 कट गया, फिर 5 से काटेंगे तो 20, 6/20, ठीक है? 6/20, यानी कि फैन का हमारा आया 0.3 kWh। समझ में आया? अब एक दिन का टोटल कंजम्पशन निकाल लो, कितना आया? 1.3.2 1.5 किलोवाट आवर आया, ठीक है? 1.5 किलोवाट आया हमारा एक दिन का, 1.5। नरेन बिटू एबल टू फॉलो? नो इश्यूज?
ओके 1.5 किलोवाट आया, ठीक है। नरेंद्र भी शैम्पू का ऐड दे रहा है, खाली बाल ही दिखते हैं, मुझे चेहरा नहीं दिखता है, ठीक है। 1.5 किलोवाट आवर, तो मंथली कितना हो जाएगा 1.5 kWh इंटू 30, ठीक है। 15 3 कितना हो गया 45, और ये 0 आया 1.0, 450 किलोवाट आवर। यानी कि चालू भाषा में बोलेंगे तो 45 यूनिट्स बोलेंगे इसको, चालू भाषा में बोलेंगे तो 45 यूनिट्स। आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना है 45 यूनिट। अब खर्चा निकाल लो, अब इसका प्राइस कितना दोगे तुम, तुम्हारे यहाँ पे 8 रुपये आ रहा है प्रति यूनिट, तो ये हो गया ₹8 पर kWh इंटू 45 kWh। kWh ने kWh को काटा और ये हो गया 360 रुपये। भैया बहुत बढ़िया है, आपका 360 रुपये का बिल आया आपका। सर ऐसा कुछ होता है ना, अगर आपके टोटल मंथली बिल इज बिलो सम नंबर, हाँ those are slabs, those are some slabs, here they won't, वो सब डोमेस्टिक में अलग रहता है, कमर्शियल हाँ वो सब अलग अलग, फिर रूरल एरियाज में अलग प्राइसिंग रहेगा, अर्बन में अलग प्राइसिंग रहेगा। दिस इज हाउ प्राइसिंग इज डन, ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखते हैं। देखो अब एक फिर जनरल नॉलेज की बातें आती है यहाँ पे। जनरल नॉलेज में अब मान लो इस फैन की जगह पे ना आप एक ऐसा डिवाइस लगाओ, आप आयरन लगाते हो स्कूल यूनिफॉर्म करने के लिए। आयरन जो हमारा है ना, आयरन हमारा 150 वॉट का है, 1500 वॉट का है, बहुत हाई है। और ये आयरन हम रोज यूज करते हैं कितना, 1 घंटा यूज करते हैं। भाई है, बहन है, पापा लेते हैं, सब लेते हैं। देखो आयरन पूरा खेल चेंज कर देगा तुम्हारा। अगर आप आयरन का कंजम्पशन देखना चाहोगे, यहाँ पे आयरन ले लो, तो ये आपका आयरन कितना हुआ 1500 वॉट है ना, 1 घंटा चलता है दिन का, तो 1.5 kWh यही खा जाएगा। इसकी कंजम्पशन कितनी होगी 100 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1 घंटा, मतलब 1.5 kWh, यानी कि 8 + 4 12 रुपया बिल तो इसी में आ गया। और 12 इंटू 30 डेज 360 रुपीज अकेला यही खाएगा। टोस्टर, ओवन, गीजर, एसी, आयरन, वॉशिंग मशीन, भैया हाँ ये सब बहुत कंजम्पशन लेती है, ठीक है। यू कैन जस्ट आस्क योर डैड व्हाट वाज लास्ट मंथ्स इलेक्ट्रिसिटी बिल, व्हाट इज दिस मंथ। जैसे इन हैदराबाद हाँ दिस मंथ व्हाट इज द थिंग, दिस मंथ यू डोंट हैव रेंज हो गए, एसी नहीं चल रहा है तो लाइट आ जाएगा। तुम्हारे पास माईगेट ऐप रहेगा तो तुम खुद ही देख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया। गीजर्स आर अराउंड वही 3000 वॉट, हाँ 3 kW, 3000 वॉट, 1500 वॉट एलिमेंट पे हीटिंग मतलब ही करंट खा रहा है। समझ में आया। तो क्वेश्चन आता है कैलकुलेट, एक तो आ सकता है उल्टा कर देगा, आपको ऐसे बोलेगा द हाउस होल्ड स्पेंड ₹360, कैलकुलेट द कंजम्पशन, so then you have to divide it. Got it? Remember when you are doing such problems, how to analyze whether energy is to be reported in kW. If you see any रुपए पैसा वाला problem, the answer always should be in kWh, not in joules. Joules आगे हम देखेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। ये टॉपिक समझ में आया? एनी क्वेश्चन हियर? आगे हम और प्रॉब्लम्स करेंगे। ऐसे समझ में आया ये कैसे करते हैं? हर अप्लायंस का पावर रेटिंग ले लो बेटा। पावर रेटिंग लेने के बाद ये तो आसान कर दिया, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आपको पेचीदा करके देंगे। जैसे ये पावर नहीं देगा, वो बोलेगा ये अप्लायंस इतना करंट खींचता है और इतना उसकी रेजिस्टेंस है, तब आपको उसका पावर पहले ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, I²R। सी you are very lucky because I gave you power in watt. This is watt. They might give you power in terms of voltage and resistance. Still you should know. They might give you power in terms of, they'll say a bulb consumes 0.5 ampere and has a resistance of 200 ohms, is run for 5 hours in a day. बात समझ में आ रहा है? आपको क्वेश्चन पूरा घुमा देगा, बोलेगा a bulb pulling a current of 0.5 ampere runs for an resistance of 200 ohms, runs for 5 hours. तो आप बोलोगे सर ने कराते वक्त तो पावर, अरे यही पावर को ही आना है। याद रहे, एक चीज ध्यान में रहे, आपके साथ दे विल प्ले ऑन दिस थिंग। ये वॉट पे नहीं देगा, दे विल गिव यू आइदर यू यूज दिस डेटा और यू यूज दिस डेटा। दिस डेटा इज बेसिकली कमिंग स्ट्रेट अवे एज वॉट, ये डेटा दे देगा। समझ में आया? तो इसमें वो भी
आई और ऐसे देगा, वॉट नहीं बोलेगा, 20 वॉट्स नहीं बोलेगा. आइदर दे विल टेल यू वोल्टेज रेजिस्टेंस और दे विल टेल यू करंट एंड रेजिस्टेंस. यू हैव टू इनडायरेक्टली कन्वर्ट इट इनटू दिस फॉर्म. इज दिस अंडरस्टूड? ठीक है, चलिए इसके बाद हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे. लेट्स कवर द लास्ट टॉपिक विच इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. एज आई टोल्ड यू, इलेक्ट्रिसिटी के 3 इफेक्ट्स होते हैं. केमिकल इफेक्ट विच यू स्टडी इन केमिस्ट्री, magnetic effect which is our next chapter, and heating effect. Heating effect is what we are going to study now, right? So चलें अभी यहाँ पे इसको मिटाऊं. Tell me, can I? दर्शिका एंड नरेन, मिटा सकता हूं इसको? राइट, चलो अब हम देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को. थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ चुके थे. वो एलॉयज जो कि हम हीटिंग एलिमेंट्स बनाते हैं. नाइक्रोम इज एन एलॉय व्हिच इज यूज्ड इन हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन. टोस्टर्स, देन ओवन्स, उसमें हम यूज करते हैं. हाँ, नहीं, जर्मेनियम इज फॉर सेमीकंडक्टर, जर्मेनियम इज नॉट यूज्ड. ओके, आ जाओ बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट. So heating effect means, suppose you have a resistor. Okay, suppose you have a resistor and this resistance is high. इस resistor से हम एक current को pass कराने की कोशिश करते हैं. You allow a current to pass through this resistor. Can the current go freely through the resistor? No. Now suppose the resistance is substantially high and the current is unable to go at that time. To make the current go, what will you do? You'll kick the current. So you'll jack up the voltage. Okay. As a result of which there will be heavy collisions happening here. Electrons want to go, they are not able to go, and we will do this for a time. There will be some time also, say time is t. So ये क्या हो जाएगा? ये heat होना शुरू हो जाएगा. ये heat होना शुरू हो जाएगा. This is the heating effect of current. Heating effect of current means when electric current is passed through a high resistance, then heat is dissipated. हम क्या बोलते हैं? Heat is dissipated. DISSIPAT. हाँ, सब में सब कुछ ही गर्म हो जाता है. every wire is a resistor, so heat will start dissipating out of it and then you can use this effect is known as heating effect. When an electric current is passed through high resistance wire and this resistance is not normal resistance, आपको heat चाहिए, you want to use it, this should be high resistance wire. For this you use special grade of alloys. Now why do we use alloys? Sir, we use alloys because resistance of alloys is much more than इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट. याद है कांस्टेंट एंड मैग्नेट. तो ये यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह यूज नहीं करते हैं. यहाँ जो एलॉय हम यूज करते हैं वो होता है नाइक्रोम, निकल एंड क्रोमियम. सो द रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम इज मच मोर देन द रेजिस्टेंस ऑफ निकल एंड क्रोमियम स्टैंड अलोन. इफ यू कंबाइन एंड मेक एन एलॉय, रेजिस्टेंस यही हमारा कहाँ रहता है? दिस इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट. Heating element. And this heating element you will see in iron, both clothes wala and soldering iron. You can also find them in toasters. Okay? Sir, anything which will get heated up? Anything where no, not heated, where you want heat to be utilized. वो तो हम मोबाइल में जब चार्ज करते हैं, चार्जर गर्म होता है. That heat is not utilizable. Where you want to heat it, like a toaster or like a OTG or like a geyser or like a heater, including cremation of people. जो हम इलेक्ट्रिक हीटिंग में क्रीमेशन होता है ना, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रिसिटी. हाई इंटेंस इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड. ओके, इलेक्ट्रिक फर्नेस सॉर्ट ऑफ थिंग. सो alloys like nichrome will be used and this effect is known as heat will be dissipated and this effect is known as heating effect. इसी को हम heating effect of electricity कहते हैं. अब कुछ और बातें, अब इसकी कुछ और मीनिंग लेते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड heating effect of electricity. This is typically when you want heat to be utilized. Remember, every conductor will not show heating effect. Heating effect are shown by specific alloys जो एकदम ताबड़तोड़ गर्म हो जाएंगे. ठीक है, हम कुछ और देखते हैं पहले तो आपको और समझ में आएगा. Say suppose हमारे पास we have a LED. हमने सबने LED देखा है. ये हमारा LED है. ठीक है, इसको डिजाइन करते हैं. चलो, ये LED जलता है हमेशा 3 वोल्ट पे और ये करंट खींचता है 25 मिली एम्पियर्स. This is the current that an LED pulls, right? 3 volt पे चलता है. So how to get 3 volt? Okay, बाजार में जाएंगे तो let's get a Duracell from market. Okay, Duracell का एक सेल कितना रहता है? 1.5 volt. तो आप दो को सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए. सीरीज मतलब
पहला वाला बैटरी ऐसा, फिर उसके बाद और एक बैटरी, और फिर इसको क्या कर दो, इसको इसके प्लस पे दे दो और इसको इसके माइनस पे दे दो, ये इल्यूमिनेट हो गया। ठीक है, खुशी खुशी बात है। लेकिन अभी हमारा क्या है, हम अभी खुराफाती है, हमारे पास ये काम नहीं करना है हमको। हम क्या करते हैं, ऐसा काम नहीं करना है हमें। ये बैटरी का खर्चा बार बार कौन देगा, है ना, बैटरी का तो खर्चा है। सो हम कहते हैं कि आजकल हमारे घर पे गूगल टीवी ले लिया है ना, तो हम फायर स्टिक से चलते हैं, तो हमारे पास टाटा स्काई का अडाप्टर खाली पड़ा हुआ है। टाटा स्काई अडाप्टर खाली पड़ा हुआ है। ओके, यू नो टाटा स्काई अडाप्टर मींस दैट ब्लैक कलर वाला ऐसा जो पड़ा हुआ है ना। ये टाटा स्काई अडाप्टर क्या कर रहा है, ये 220 वोल्ट एसी खींच रहा है और ये इसको स्टेप डाउन करके आपका मान लो 9 वोल्ट डीसी दे रहा है आपको टाटा स्काई। ये ऑल्टरनेटिंग करंट, ये डायरेक्ट करंट, ऑल दिस दैट यू आर स्टडिंग इज एवरीथिंग इज डायरेक्ट करंट, ओके, यूनिडायरेक्शनल करंट। अब हम क्या चाहते हैं कि हम बैटरी नहीं खरीदेंगे, हमने तो साइंस पढ़ी है, हम इस टाटा स्काई के अडाप्टर से इस एलईडी को जलाएंगे। एलईडी कितना खाता है, सिर्फ 3 रोटी खाएगा, ये कितना दे रहा है, 9 रोटी जाएगा, तो लगाते ही फूट जाएगा एलईडी। लेकिन हमें चलाना है, अब कैसा रेजिस्टेंस लगाएंगे, उसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, दैट्स जस्ट डिजाइनिंग ना, लेट्स डिजाइन दिस। एनीवन ट्राई एंड यूज योर हेड। सीरीज रेजिस्टेंस, no. It's simple. See, it's something like this. This is the Tata Sky adapter सोच लो, right? It is giving you how much? 9 volt. You want to glow an LED. Okay, the symbol of LED is like this. कोई बात नहीं, आपको इसको जलाना है। Can you directly connect the 9 volt out here? No. ठीक है ना, हमने मान लो ये नेगेटिव से नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया, ये LED का नेगेटिव होता है। अगर आप इसको कनेक्ट करते ही आपका एलईडी फट जाएगा। दर्शकों समझ में आ रहा है क्यों फटेगा, क्योंकि ये 3 वोल्ट पे चलता है, आप इसको 9 वोल्ट सप्लाई कर रहे हो, फटाश इट विल गो अवे। Naren, can you design? Let's design. We need a resistor. We have to block the voltage. We don't want that much voltage. How to design the voltage? You know, ये आपने ohms law देखा, अभी समझ में आ रहा है? Where education versus practical is on a loss. You go take Naren and let us go to Chandni Chowk, Bhagirath Place. It is a market, लाल किला के पास। वहां जाओगे ना, चप्पल वाला आदमी बोलेगा, हाँ साहब ये रजिस्टर ले लो, डाल दो, जल जाएगा आपका। अब हमें कुछ शर्मिंदगी होती है उस वक्त, हमने इतनी ओम्स लॉ पढ़ ली, हमसे भूतनी का ये जल ही नहीं रहा है, और वो चप्पल वाला आदमी आपको बोलेगा हाँ है रजिस्टर डाल दो, ओ छोटू वो 200 का दिला दे साहब को, जल जाएगा। उसको कैसे आता है? यही मैं चाहता हूं आपको, आप साइंस पढ़ रहे हो ना, तो ये डिजाइन करते, चलो डिजाइन करते इसको, ठीक है। क्या प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे, 9 वोल्ट नहीं चाहिए ना, कितना चाहिए ज्यादा, कितना रोटी ज्यादा आया, 6 रोटी ज्यादा आया। सो आपको बेसिकली एक वोल्टेज ड्रॉप क्रिएट करना है। व्हाट इज द ड्रॉप? 9 - 3 विच इज इक्वल टू 6 वोल्ट। ये नहीं चाहिए हमें, वी नीड टू ड्रॉप दिस वोल्टेज। ओम्स लॉ ही लगेगा यहाँ पे भी। करंट कितना खींचता है ये, 25 बस आ गया ना, आई का वैल्यू कितना है 25 मिली एम्पियर, दैट मीन्स 25 into 10 to the power -3 एम्पियर। कैन वी कैलकुलेट आर नाउ? आ जाना चाहिए ना, ठीक है। आप नहीं कर रहे हैं, चलिए मैं कर देता हूं आपको फटाफट। सो लेट्स सी व्हाट इज द थिंग। सो वी आर हैविंग हाउ मच, 6 डिवाइडेड बाय 25 एक्सपोनेंट -3। हमारी वैल्यू आती है, एग्जैक्टली मैच कर गई है 240 ओम्स, 240 ओम्स, ठीक है। वो क्या बोलेगा राजेंद्र, और 300 का दिला दे साहब को, 300 ओम, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या, नहीं कोई खराब नहीं होगा, 300 ओम तो खुशी खुशी रखेगा आपको। तो हमने हाँ 240 है, तुम कम खिला रहे हो बेटा, मर थोड़ी जाएगा। नथिंग इन मार्केट इज एग्जैक्ट। आप 240 बोलोगे तो एग्जैक्टली 240 का नहीं भी मिल सकता है, 200 मिल सकता है, 300, देन अगेन यू शुड डू सीरीज कॉम्बिनेशन। सो रफली लेट्स पुट अ 240 ohms resistor out here, and now let us connect our LED. Our LED will happily glow, but एक तो प्रॉब्लम होएगा। Now imagine this is like चित्तौड़ का किला कब्जा हो रहा है, राणा रावल सिंह महाराज जी अंदर खुश है, यहां से खिलजी फायरिंग कर रहा है, और द्वारपाल ने यहां रोक के रखा है किसको, खिलजी की सेना को। इधर तो घमासान लड़ाई हो रही है ना, क्या होएगा यहाँ पे, बहुत गरम होगा, हीट होएगा। ये थोड़ी देर बाद ये रजिस्टर गर्म होना शुरू हुआ। नरेन एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट नाउ?
This fellow is bumping 9 volt to you, and after this you are getting how much? If you use what is a potentiometer here, sorry, a voltmeter between these two, हमारा voltmeter ये कितना रीडिंग दिखाएगा? 3 वोल्ट्स दिखाएगा, और यहाँ एमीटर डाले तो कितना रीडिंग दिखाएगा? 25 मिली एम्पियर रीडिंग दिखाएगा। ये हुआ ना डिजाइनिंग। लेकिन इधर तो घमासान लड़ाई हो रहा है, ये गर्म होता जाएगा, और गर्म होने के बाद ये फटेगा एक टाइम पे, ठीक है? तो आप जब अब नाउ इज द डिफरेंस बिटवीन यू एंड राजिंदर। राजिंदर बोलेगा 300 का दिला दे साहब को, हम होने से क्या सवाल पूछेंगे पता है? कितने वॉट का दे रहा है? अब जो रजिस्टर बाजार में आता है ना, बाजार का रजिस्टर आता है क्वार्टर वॉट, हाफ वॉट, 1 वॉट, ठीक है, हाँ 2 वॉट, ठीक है, 30 वॉट, महंगा होता जाएगा। 30 वॉट मतलब जलाते जाइए हमें लगा के, कितना तक? 365 दिन हम उतने गर्म नहीं होंगे। Watts is power dissipation, heat is energy, energy per you're going to run this LED for long hours, सारा दिन जल रहा है आपका। What is watt? What is power? Power is energy divided by time. So first we should calculate how much energy this fellow will take, then only we will be able to decide the watt. So that depends on the element. There is nothing to do. What is an element out here? We know heat will be, वही तो होता है रट्टू ज्ञान, heat will be dissipated through this resistor. तो हमें 240 का रेजिस्टर चाहिए। बाजार में 240 ओम्स का रेजिस्टर इतने सारे वोल्टेज में अवेलेबल है, हम कौन सा लगाएं? इसका दाम होगा, भागीरथ प्लेस में ये 50 पैसे लेगा एक, ये 1 रुपए होगा, ये 1.5 रुपए, यहां तक आते हैं तो 15 रुपए आ जाएगा एक का। हम कौन सा लगाएं? सो वी नीड टू फाइंड आउट हाउ मच heat will be dissipated first out here. Then we need to see how much time are you running this LED for. Heat is energy, time is time, energy by time will give you what is the power. बस जितना पावर है उससे थोड़ा ज्यादा ले लो, दहेज की तरह। वही तो काम है, अभी वही तो काम है यहाँ पे, वही निकालना है, हीट डिसिपेटेड। आप इसको इस एंगल से तो हर क्लास में आप पढ़ोगे, आपसे पहले बच्चे भी पढ़ के गए, पर ये पढ़ के राजिंदर को आप ठक्कर दे पा रहे हो? नहीं। मैं आपको राजिंदर एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप इसको डिजाइनिंग में यूज कर सके। ये तो आप किताब में पढ़ोगे, हम भी आपको ऐसे ही सिखाएंगे, पर उसका डिड यू डू अ प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ योर नॉलेज? नो। सो राइट नाउ वी नो इफ यू पुट अ 240 वॉट वी आर गोना, ये तो जलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप जैसे इसको छुओगे ना, ये गर्म होता शुरू हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द रेजिस्टर, दिस इज द रेजिस्टर। So let's now calculate how much the heat will be developed, ठीक है, which is applicable for here also plus your syllabus also. Your syllabus doesn't talk about it, but we will talk about this, ठीक है। चले इसका heat calculate करने के लिए, चलिए प्रॉब्लम को ऐसे रखिए, ये लेफ्ट साइड मिटा दो। चलो अब इसका heat calculate करते हैं, आ जाओ। Voltage is equal to work done, और नीचे क्या है हमारे पास? चार्ज Q। क्लियर? वर्क इज नथिंग बट योर एनर्जी, वर्क ही तो एनर्जी होता है ना। तो चलो वर्क को देखो, तो वर्क इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू चार्ज। अग्रीड? राइट, वेरी गुड। अब हम इसे, हमें क्या चाहिए? हम पावर चाहिए, हमें पावर हम बाद में निकाल लेंगे, पहले हीट को निकाल लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। अब वर्क को लिखने का और एक तरीका क्या है? वोल्टेज। वोल्टेज दिस, नाउ bring the factor of Q. Q by T is nothing but I. Do you agree? Therefore, Q should be equal to IT. तो यहाँ पे मैं IT लिख सकता हूँ। कुछ नया काम नहीं किया यार, ये तो तुम्हें भी पता है। Power is equal to energy by time. So energy is equal to power into time. That is work money energy, हाँ। So पावर मतलब VI और T, ये तो फॉर्मूला तुम भी जानते हो, उसी को ही तो लिख रहे हो यहाँ पे। धीरे धीरे से इनको एनर्जी भी लिख रहा हूँ, हाँ, E, ठीक है। अब ओम्स लॉ लगा दो, क्योंकि हमें यहाँ पे वोल्टेज नहीं पता, हमें इतना पता है कि इससे कितना गुजर रहा है, 25 मिली एम्प्स गुजर रहा है, ठीक है। दैट इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट। वी वांट टू फाइंड आउट हाउ मच एनर्जी इज बीइंग, कितना हीट डिसिपेट करेगा। चलो
ओम्स लॉ क्या कहता है मुझे? V अपॉन I इज इक्वल टू R, राइट? V अपॉन 1 बेटा, V अपॉन I इज इक्वल टू R, ठीक है? therefore V कैन बी रिटन एज IR, कैन आई राइट इट? तो इसके जगह पे हमने IR लिख दिया, एक और I और एक और T, तो E हमारा क्या हो गया? I स्क्वायर RT। अब इस E को मैं धीरे से रिप्लेस करके H लिख देता हूं। ये एनर्जी कोई लाइट जल के तो नहीं जाएगी, गर्म होएगी, तो दिस एनर्जी विल बी, दिस इज वर्क इज एनर्जी, दिस एनर्जी विल बी कमिंग आउट एज हीट व्हिच इज H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, करेक्ट? समझ में आया? तो ये हो गया, हम आराम से निकाल सकते हैं कितना जाएगा इसमें से। यू नो द वैल्यू ऑफ I, यू नो द वैल्यू ऑफ R, ये और टाइम तुम्हें पता है, इतना हीट जा रहा है, एंड एनर्जी पर यूनिट टाइम पहले हम निकाल लें इसको, आ जाओ। तो इसमें अगर हमें पावर निकालना है तो I स्क्वायर R, ठीक है? अब चलो, अब ये एलईडी जो है ना, ये एलईडी हमने डिजाइन किया है अपने एक डिवाइस का पायलट लैंप, मतलब जब लगा रहता है तो रेड लाइट ग्लो करता है ना रेफ्रिजरेटर में, दैट इज कॉल्ड अ पायलट लैंप, मींस इट विल बी 24/7 ऑन। लेट्स से दिस डिवाइस इज स्विच्ड ऑन लाइक अ सेट टॉप बॉक्स का एलईडी है, 5 घंटा तो जलेगा। चल अभी इसका कैलकुलेशन करते हैं, 5 घंटा जलाते हैं। I स्क्वायर 25 एक्सपोनेंट -3 जितना भी है इसको स्क्वायर किया, R है 240 इंटू 5 घंटा, 5 घंटा को सेकेंड्स में लेना पड़ेगा, आप एसआई में कर रहे हो। 5 घंटा मीन्स 5 इंटू 3600, तो आपका हीट डिसिपेट होगा 2700 जूल्स, राइट? डिवाइडेड बाई अगेन 5 इंटू 3600, राइट? 5 घंटा कर रहे हो ना आप, तो 5 इंटू 3600, ठीक है? सो इट्स कमिंग 3/20, 0.15 वॉट। यहां पे 0.15 वॉट का पावर कंजम्पशन करेगा ये। कौन सा रेजिस्टर ले ले? 0.15 बोले तो दिस इज 0.25। सेफ्टी के लिए अगर कोई दुकानदार बोले साहब 1 वॉट लोगे तो 2 रुपये का आएगा, ले लो भाई 1 वॉट का ले लो ना, क्या जाता है, थोड़ा मोटा होगा रेजिस्टेंस, लगा दो, हैप्पी। ये अगर क्वार्टर लगाओगे ना तो गर्म, यू कैन फील द हीट। इसको लगाओगे, ठीक है, ये थोड़ा महंगा होगा लेकिन अपने को काम में आएगा। सर ये सब हम सारे मशीन में नहीं लगा, सब मशीन में ही लगा हुआ है। ये फिर भी हीट आती है ना? हीट सिंक है हर मशीन, हर सेट टॉप बॉक्स का नीचे कभी छू के देखा है? दैट्स एन टिन शीट, दैट्स कॉल्ड हीट सिंक, उसी से ही हीट डिसिपेट हो रहा है। तो हीट को बाहर, हाँ, हीट बाहर आना ही पड़ेगा। देन डिवाइसेस हैव गॉट हीट शील्ड्स ऑन देम, जैसे आप कुछ आईसीस देखोगे ऐसे बड़े बड़े एल्यूमिनियम के बार लगे रहते हैं। उतना गर्म हो जाएगा तो उड़ जाएगा ना। इनफैक्ट व्हेन आई डू प्रोजेक्ट्स ऐसे लगा के, कोविड में जो तुम टेम्परेचर गन यूज करते थे ना, मैं उसी को रजिस्टर पे मारता था, कितना टेम्परेचर रेज हो रहा है देखने के लिए ना, एंड देन द डिजाइनिंग कम्स करेक्ट। ठीक है, समझ में आया? सो यहां से हमें एक और फॉर्मूला मिला बेटा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अब देखो एक और चीज, क्यों यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी ऑफ वायर्स। से फॉर एग्जाम्पल आप एक एसी चला रहे हो और एसी को पावर देने के लिए वायर शॉर्ट गिरा, आपका इलेक्ट्रिशियन क्या करेगा? कोई भी एक मैचिंग वायर लाएगा, दांत से खींचेगा और ज्वाइन करके लगा देगा। अब एसी है, एसी करंट खींचता है कम से कम, मैंने एसी स्टार्ट्स ना गड़क, उसको स्टार्टिंग करंट बोलते हैं। स्टार्टिंग करंट कम से कम एक एसी 12 से 14 एम्पियर खींचता है और रनिंग करंट होगा 8 एम्पियर, ह्यूज करंट। टाइम आपके हाथ में नहीं है क्योंकि आप तो, इट्स नॉट इन योर कंट्रोल। रेजिस्टेंस ऑफ द एसी इज नॉट इन योर कंट्रोल, ये इनबिल्ट आता है। सो इफ यू सी द हीट दैट विल बी डेवलप्ड इन द वायर, जिस वायर से आप एसी चला रहे हो, इट इज नॉट 8 का स्क्वायर के साथ रिलेट होगा। पीपल कॉम्प्रोमाइज विद दिस। ये जो बड़े बड़े मॉल्स में आग लगते हैं ना, ये मॉल में शो के लिए सब कर लेंगे और फिर इन वायर्स को किससे पास कराता है? पीवीसी के पाइप से पास कराएगा। कोई रेटिंग ठीक नहीं, और पीवीसी इटसेल्फ इज फ्लेमेबल। इस पे टेम्परेचर गर्म होगा, शॉर्ट सर्किटिंग होगा और फिर इसका इंसुलेशन मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही 2 इंसुलेशन मेल्ट होंगे, दोनों टच करेगा, फायर होगा और फिर भस्मास होगा। Never, and if you go and ask any person who has purchased a new flat,
अगर आप उसको ये ज्ञान दो ना, सब अच्छा वायर है लगा लीजिए, ये बहुत हो गया, मैंने ना पेंटिंग में बहुत खर्चा हो गया, लगा दो। वी हैव द लास्ट रिस्पेक्ट फॉर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। नाउ डू यू गेट इट? नेक्स्ट टाइम व्हेन यू सी योर बिल्डिंग एंड यू सी एसी के बाहर वायर ना ऐसे टेप मार के लगाया हुआ है, दैट्स ऑल। सो वायर्स कम इन डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड। जो हम वायर्स खरीदते हैं 1 square mm, 1 square mm means the dia is 1 mm square, 1 square not dia, cross sectional area, 2 square mm, 1.5 square mm, 2.5 square mm। तो एसी की वायरिंग कम से कम 2.5 square mm से होना चाहिए, कम से कम। मोटा मोटा, पतला मतलब वो दिवाली वाला वायर लगा दोगे ना, पूरा तुम्हारे आंख के सामने बजा। लेट्स से फॉर एग्जांपल, okay, one more good example is out here. Let's say common example, let's say this is your car, ये तुम्हारी गाड़ी है, ठीक है, तुम्हारी गाड़ी का बैटरी डाउन हो गया है, ठीक है। अब ये एग्जांपल, अभी इसका आंसर दो, चलो तो सीखने में आएगा। ये हमारी मारुति 800 है, मारुति 800। इसके गाड़ी का बल्ब कितना है? 12, एवरी कार बैटरी इज 12 वोल्ट। गाड़ी की बैटरी काफी महंगी होती है, 6 से 7 हजार रुपए आएगा। और मारुति की जो हेडलैम्प्स है ना, मारुति 800 की हेडलैम्प्स है 50 by 55 वॉट्स, मतलब हाई बीम में 55 मारेगा, लो बीम में 50 मारेगा। हमने इतना पैसा लगा के ये बैटरी क्यों लगाया मारुति में? हम ड्यूरासेल 1.5 से 12 निकालना है, 8, 12 8 जा 120 होता, 15 8 जा 120 है ना। तो ऐसा हम ड्यूरासेल के 1.5 को लेके अगर हम 8 बैटरियां लगा देते, 8 बैटरी ना, तो फिर 12 वोल्ट हो जाता है ना। इतना पैसा क्यों खर्चा कर रहा है गाड़ी वाला? इसको ये बल्ब जलने के लिए, दिस इज अ 12 वोल्ट बल्ब, ये क्यों नहीं किया? ये क्वेश्चंस होना चाहिए आपके दिमाग में। हमारे गाड़ी का बल्ब 12 वोल्ट का ही होता है, 12 वोल्ट तो इनको जोड़ने से भी हो जाएगा ना, उससे क्यों नहीं जलाते हैं? क्या हो जाएगा? एक चीज आपने नहीं देखा, ये हाई वोल्टेज डिवाइस है, 55 वॉट्स है। एलईडी की वोल्टेज काफी कम होती है। एक जरा सा एलईडी का एक वॉट देख लेते हैं, इसका वॉट्स निकालते हैं। इसका वॉट निकाल पाओगे? पावर इज इक्वल टू वी आई। चलो वी आई करते हैं। हाउ मच इज वी? वी इज 3। हाउ मच इज आई? 25 एक्सपोनेंट -3। ओके, सो 25 एक्सपोनेंट -3 इंटू कितना हमारा, दिस इंटू 3। इसका वॉट कितना है पता है? ये है 0.075 वॉट, कुछ भी नहीं है, चिन्नू। ये 55 वॉट है। जैसे ही आप ड्यूरासेल से इसको जलाओगे ना, ये बहुत रोशनी देके फैंच करके ड्यूरासेल साथ साथ खत्म हो गया। रोशनी आएगा क्योंकि पहले इसको मिलेगा ना। इसका करंट, आप लोग जो चीज नहीं देख रहे हो, मैथमेटिक्स देखो, यू ट्राई टू फाइंड आउट द करंट हियर। करंट विल बी गिवन बाय व्हाट? पावर इज इक्वल टू वी आई। So I is given by power 50 divided by V. How much is the V? 12. कितना आ गया? 12 4s are 48 and then 20, 12 1s are 12, 80। मतलब 4.1 के ऊपर इतना एम्पियर खींच रहा है भाई साहब। आपका एसी 8 एम्पियर खींचता है, मारुति 4.1 एम्पियर खींच रहा है। ड्यूरासेल कितना दे रहा है? ड्यूरासेल तो इसको जलाता है, इससे ज्यादा देने की काबिलियत ही नहीं है। Are you understanding current क्या है? Now see, now how to give you the example of it. Duracell is like a 2-burner gas stove. ये 2-burner गैस स्टोव एक इंसान को रोटी बना बना के खिला सकता है। दे आदमी विल से हाँ रोटी आ जाएगा। ये जो है ना, ये एक्साइड का बैटरी दे सकता है। एक्साइड बैटरी इज 5 स्टार होटल या लंगर का किचन। रोटियों का स्वाद वही रहेगा 12 वोल्ट, लेकिन लंगर में कितने लोग खा रहे हैं एक साथ? एक बैच में 800 लोग। रोटी लाओ, ये 2 बर्नर वाला तभी दे पाएगा? कहां, किसमें लगो? दिमाग गर्म हो गया उसका, फट्टू हो जाएगा। ये दे पाएगा। अच्छा, अभी उल्टा करते हैं बात को। सर हम एलईडी को ड्यूरासेल में जला सकते हैं, एक आदमी को लंगर के किचन में खिला सकते हैं? बिल्कुल खिला सकते हैं, खुशी खुशी खिला सकते हैं। अरे यार, यू आर लर्निंग डिजाइनिंग, इसमें कॉस्ट मत लाओ। बिल्कुल खिला सकते हैं। एक्साइड बैटरी से एलईडी जला सकते हैं, बिल्कुल।
इनफैक्ट इन माई चाइल्डहुड whoever used to throw away गाड़ी बैटरी, my mom used to scold, मैं ले आता था उसको, क्योंकि गाड़ी के बैटरी से आप बहुत दिन प्रोजेक्ट कर सकते हो, गाड़ी के लिए यूज नहीं होगा, लेकिन हमारे चुन्नू मुन्नू प्रोजेक्ट के लिए इट इज वेरी गुड। 6 महीना बैटरी खरीदने की जरूरत नहीं है, आराम से काम करेगा। समझ में आ रहा है? डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? एलईडी ड्यूरासेल से चलेगा, मारुति का हेडलैम्प एक्साइड से ही चलेगा। इसीलिए एक्साइड की जब हम बैटरी खरीदते हैं ना, एक्साइड बैटरीज, वो लिखा रहेगा 12 वोल्ट 45 एम्पियर आवर्स लिखा रहेगा, 45 AH होता है। ह्यूज करंट दे सकता है ये, वो करंट। नाउ वेयर डिड आई गो टू दिस? नाउ सपोज ये मारुति का बैटरी डाउन हो गया, अब आप दोस्त की तरह एक और बड़ी सी गाड़ी ले आते हो, हमारे ना बहुत बढ़िया सा हमारा टोयोटा है, तो टोयोटा से आप इस गाड़ी को जंप कर रहे हो, इसके बैटरी से इसको स्टार्ट कर रहे हो। आपने कभी जंपिंग केबल देखा है? ये मोटा होता है, मेरे पास रहता है, तेरे डैड बहुत टाइम लेते हैं मेरे से। ये मोटा होता है, क्यों? क्योंकि ये गाड़ी 12 वोल्ट खींचेगा, बहुत करंट खींचेगा। अगर तुमने एरा गैरा केबल लगाया ना, जैसे इसको स्टार्ट करोगे, यू विल सी द वायर फ्यूमिंग अप स्ट्रेट अवे। So your interior decorator, when they get a flat, they will immediately pull out all wires। राम शाम तुमको जब हैंडओवर करता है, लाइट जल रहा है, यहाँ हमने ना यहाँ बहुत LEDs लगाए हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुमने किस वायर का क्या सत्यानाश किया है। We Indians are happy when something lights up. How you are lighting it up, we have never seen that. Do you understand now? So this is what is there in your course. Now we can calculate the heat for anything. All you will be given is, right, one thing that you should remember, when you use this formula, time is always in second, because here the answer will come in joules. But in kilowatt hour, that is also energy. There the time is in hours. Any question on this? ये समझ में आया? ये अच्छा, तो अब मेरा जो सवाल हर बैच को मैं पूछता हूं, अब आपको पूछ रहा हूं वो वाला सवाल। पूछूं? चलिए। हाँ सर, वो कार का जंप होता है, हाँ, वो बैटरी हम यूज करते हैं कार में टू स्टार्ट द कार, just to start the car. Once the car has started, car does not use any battery. Then the charging of the battery happens. Basically alternator को घुमाना है। सी कैसा रहता है, आपके गाड़ी का इंजन जो है ऑल्टरनेटर को घुमाते रहता है और वही आपको पावर देता है। लेकिन इंजन को घुमाने के लिए पहले एक मोटर रहेगा, क्रैंकिंग मोटर। उस क्रैंकिंग मोटर को कहीं से, तो जैसे आप बाइक में क्या करते हो, किक मारते हो, तो आपने हाथ से टॉर्क दे दिया। वहीं अगर आपका सेल्फ स्टार्ट बाइक है तो आप मोटर से वो टॉर्क देते हो, वो डाउन हो गया। अब मेरा क्वेश्चन, हमने एक फोन खरीदा है और ये फोन है हमारा, ये तो साहब का फोन है ना, भाई साहब तो आईफोन के नीचे बात ही नहीं करते हैं। ये आईफोन है और इसका जो दुकान का चार्जर लग के आया, ये 2 एम्पियर का चार्जर है, ठीक है। साहब पार्टी करने चला गया नरेन के घर पे और मोबाइल में चार्ज नहीं है साहब के पास, और ये है नरेन का फोन। अब खाली आंसर मत देना, सोच के देना है। ये नरेन का फोन है, तो इसका फोन का कुछ एक कंपनी है और मान लो इसका OnePlus है और इसका चार्जर 3 एम्पियर का है। अब साहब को रात हो जाएगा एंड साहब इज एक्चुअली चार्ज डिप्लीट हो गया। माय क्वेश्चन इज, और कनेक्शन दोनों का ही सी केबल है, शुड साहब यूज नरेन्स चार्जर, yes or no? And we will see the reverse story also. Naren came to Sahib's house. The next story will be, you can answer both together. Naren came to Sahib's house and his charge is gone. And he will get a 2 ampere charger. So how, ऐसे फटाक से आंसर नहीं देना है, क्योंकि मैं आंसर पूछूंगा क्यों, पूरा समझाना है मुझे। बच्चों की तरह मत बोलो yes yes yes, no 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 मैम no no, वो नहीं, सोच के बोलो। चल नरेन आप बोलो। First part of the story. Sahib has come to your house and he wants to use your charger. Is it advisable to Sahib to use your charger? If yes, why? If no, why? What are the consequences? What not? Then I don't think you should use the charger because it might damage the entire battery and making it perform less than it should. अच्छा, that is one. आपको क्या लगता है? अब मैं ऐसे मुंह कर रहा हूं तो आप सोच रहे हो आंसर कुछ और होगा। ये एग्जाम्पल याद है ना? अच्छा, every charger has a voltage of 5.1 volt. That's why you use a USB.
USB मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस, एंड USB का वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है 5.1 वोल्ट. हाउ इज दिस? जस्ट बिकॉज आई सेड आईफोन एंड वन प्लस आप लोग बौखला गए. हाउ इज दिस एग्जाम्पल डिफरेंट फ्रॉम रनिंग द LED on the excite bulb? Current is something that you will pull. इसको कितना करंट चाहिए? 2 ये कितना है? ये है एक आदमी, ये लंगर का किचन है, खाना खिला सकता है ना इसको. लेकिन वोल्टेज पे ध्यान दो. वोल्टेज 5.1 साहेब कैन हैप्पीली यूज नरेंस चार्जर, नो इश्यू, नो इश्यू. ये आधा लोग, ये अभी आप जो आंसर कर रहे थे ना सर 3 एम्पियर पुश कर देगा साहब का फोन फट जाएगा, हाँ वो इस पे लगाओ. अगर ये 10 वोल्ट होता और ये 5 वोल्ट होता ब्रांस हो जाता, जो हमारा ये था. हमने तो वोल्टेज को मेंटेन कर दिया है ना. तुम्हें चाहिए 6 सेंटीमीटर का रोटी, ये भी 6 सेंटीमीटर देगा, लेकिन ये रोटी तुम्हें ऐसे दे रहा है, रोटी रोटी, तुम क्या बोलोगे? नहीं चाहिए और खत्म. अब उल्टा कहानी देखते हैं. नरेन वेंट टू साहिब्स हाउस. उल्टा हो रहा है. Naren is like 6 people have gone to a house which has got 2 burner gas. रोटियां उसी साइज की आ रही हैं, लेकिन नरेन बोलेगा रोटी लाओ, रोटी लाओ. साहब रुकिए, रोटी लाओ. और कितना चाहिए तुम्हें? तब से बेल रहा हूं. दिमाग गर्म हो जाएगा, इसका चार्जर हीट अप हो जाएगा. Your charger will become heated because he wants to eat 3 ampere. खा रहा है वो, उतना दे ही नहीं पा रहा है. ये हो गया मारुति 800 को ड्यूरासेल से जलाने वाली बात. समझ में आ रहा है? सो गेट दैट थिंग आउट ऑफ योर हेड. इफ यू हैव अ हाई एम्पियर डिवाइस, लाइक से when we run lot of LEDs on Diwali, right? So LEDs are very big power consumers. हाँ, बिग पावर कंज्यूमर. चलते हैं 5 वोल्ट पे, लेकिन पावर बहुत चाहिए, बहुत पावर चाहिए. ऐसे सोच लो, एक कॉमन एग्जांपल ले लो. 25 मिली एम्पियर, 25, सी डिजाइनिंग 25 मिली एम्प्स. 25 मिली एम्प्स के अगर मैं 300 LED कनेक्ट करूं दिवाली के लिए, कितना पावर हो जाएगा? पैरेलल, सबको पैरेलल कनेक्ट करना है. सो द करंट गेट्स एडेड अप. सो 25 मिली एम्प्स, 25 एक्सपोनेंट -3 इंटू 300 LED कनेक्ट कर रहा हूं. इट विल पुल समथिंग लाइक 7.5 एम्पियर. Now see the interesting that. मिटाओ इसको, ठीक है. अब देखो, अब एक दिवाली का डिजाइन देखो. हमने 300 LEDs कनेक्ट किए, कितने? 25 मिली एम्पियर के. हमारा करंट डिमांड हो गया 7.5 एम्पियर. वोल्टेज कितना चाहिए हमको इनको चलाने के लिए? सिर्फ 3 वोल्ट चाहिए. क्या ड्यूरासेल ये दे पाएगा? अब हम क्या करते हैं, और इंजीनियरिंग लगाते हैं इसमें. हमारे पापा का ना पुराना लेनोवो लैपटॉप खराब हो गया, हमने उसका अडेप्टर उठा लिया. देखो, सीखो. अडेप्टर्स आपको देंगी समथिंग अराउंड, दे विल गिव यू समथिंग अराउंड 18 वोल्ट्स एट अराउंड समथिंग लाइक 18 टू से 40 से 65 वॉट्स करके देगा आपको. अडेप्टर के पीछे ऐसा लिखा रहेगा 18 वोल्ट 65 वॉट. कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज द करंट? ऑब्वियसली 65 डिवाइडेड बाय 18, दैट मीन्स ये अडेप्टर 18 वोल्ट को तो हम स्टेप डाउन कर लेंगे 12 वोल्ट में. ये टेक्निक तो हमें पता है रेजिस्टर वगैरह लगा के. पर ये कितना रोटी सप्लाई कर सकता है? ये सिर्फ 3.6 एम्पियर सप्लाई कर सकता है. सो इफ यू आर थिंकिंग दैट विथ योर डैड्स अडेप्टर यू विल बी रनिंग दिस दिवाली, नहीं होएगा. फट्टू. तब हमारे जैसे हॉबिस्ट क्या करते हैं, हम दर्शिका के घर में जाके पूछते हैं, दर्शिका आपका पुराना डेस्कटॉप है क्या? हाँ सर है, वो ऐसे भी मम्मा फेंकने वाली है. हम कहते हैं हमें दे दो. उस डेस्कटॉप के अंदर एक चीज मिलता है जिसको हम कहते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई. एक डेस्कटॉप के अलग अलग वोल्टेजेस रहते हैं. यू विल नीड 12 वोल्ट, यू विल नीड -12 वोल्ट, यू विल नीड 5.1 वोल्ट, यू विल नीड 3 वोल्ट, यू विल नीड 9 वोल्ट. SMPS इतने सारे वोल्टेज छोड़ता है. ये तो बड़ा काम का चीज है. लोग ऐसे ही फेंक देते हैं डेस्कटॉप, इसके अंदर ये चीज मिलता है. और इसका जो पावर होता है ना, इसका पावर मीन्स इट्स करंट, इट कैन टेक अप टू समथिंग अराउंड 30 एम्प्स का करंट ले लेता है. ये वेरी यूजफुल डिवाइस. खोल के ले आओ और इसी से बनाओ अपने घर का बेंच पावर सप्लाई.
तुम्हें कितना चाहिए? 7.5 ये लंगर है यार, 30 एम्पियर दे रहा है, खुशी खुशी जलाएगा इसको। और वोल्टेज कितना चाहिए? 3 वाला लीड यूज कर लो। समझ में आया? ये जो तुम चलाते हो केंट आरओ, अब मुझे बहुत लोग कहते हैं मेरे टावर में स्क्रैप वाला, कोई केंट आरओ बाहर रख देता है ना, मैं स्क्रू ड्राइवर से खोल के उसका जस्ट अडेप्टर निकाल लेता हूं, क्योंकि वो हाई वोल्टेज अडेप्टर है, उससे आप कोई भी लाइट लड़ी जला सकते हो, क्योंकि वो करंट ज्यादा छोड़ सकता है। समझ में आ गया? प्लीज ऑलवेज अंडरस्टैंड, करंट इज अ वेरी डिसाइसिव थिंग। हमें करंट चाहिए। जब तक आप करंट की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते हो, आपका कुछ नहीं चलेगा। इसीलिए हम मारुति में ड्यूरासेल नहीं लगा सकते। वोल्टेज तो वो भी 12, ये भी 12। ये सब एनसीईआरटी कहीं कवर नहीं करता है। इसलिए जब तुम इसे पढ़ के जेई लिख के इलेक्ट्रिकल पास करके भी आते हो, चप्पल वाला राजेंद्र तुम्हें बोला साहब आईसी खराब हो गई आपकी, और तुम भी व्हाट्सएप मारोगे, या दर्शिका यू नो द आईसी इज कॉन्क्ट ऑफ द गाय जस्ट सेट। गाय ने तो बना दिया तुम्हारा गाय, और तुम खुशी खुशी गाय बन गए उसके साथ। मजा आया? समझ में आया? अच्छा, फैन का वोल्टेज कितना निकला था मैंने? 60 वॉट्स, 65। फैन का वायर खोल के हाथ लगा दो तो शॉक लग के मरोगे ना। और तुम्हारा एम्पियर के मोबाइल कितने का है? 3 एम्पियर का। और मोबाइल का चार्जर पकड़ने से मरते क्यों नहीं है फिर? ये सब नहीं सिखाते हैं स्कूल में। मोबाइल इज 3 एम्पियर ना, फैन तो है 65 वॉट्स। 65 वॉट्स मतलब फैन का जस्ट जरा एम्पियर देख लो तो 220। 65 वॉट्स डिवाइडेड बाय से 240, फैन करंट खींच रहा है 0.27 एम्पियर। हाँ, कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूं, यही डेटा है। पर छूने से मर जाएंगे। और मोबाइल का तार में कितना आ रहा है? 3 एम्पियर। ये हम जब सीआई पढ़ा रहे थे तो एक बोस गौरी को बताया, उसको इतना शौक आया, उसने जाके स्कूल में पूछा, उसके मैम ने बोला डोंट आस्क अनवांटेड क्वेश्चंस करके उसको बिठा दिया। ठीक है मैम, हमें शौक क्यों नहीं लगता है? सोचो क्यों नहीं शौक लगता है? इसका ये सब नहीं सीखोगे तो आप साइंस क्या सीख रहे हो? ठीक है, आ जाओ। So this part you have understood, H is equal to I square RT. So let's see the mobile charger. The mobile charger gives an output of 5.1 volt and gives a 3 ampere current. Where are you driving it? You are driving it inside a mobile. मोबाइल के अंदर दे रहे हो ना। और इसी कनेक्शन को हमारे हाथ में लगाते हैं। अभी ये हमारा हाथ है, यहाँ देते हैं। हम कहते हैं ये सीलिंग फैन है, ये सीलिंग फैन है। सीलिंग फैन कितना खींच रहा है? 0.27 एम्पियर। कितना में? 240 वोल्ट। इसी लाइन को अगर हम हाथ में खींच के ले आए ना, तो भाई साहब हमारा तो हो गया हड्डी वाला सीन। ठीक है, ये हो गया, हम फोटो बन जाएंगे, हर साल चेंज होगा, माला बदलेगी हमारे ऊपर। ठीक है, इसमें सिर्फ 0.27 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बड़ी स्माइली सा फेस है हमारा। अब सुनो, जो चीज तुमने गौर नहीं किया वो है दूसरा। किसी भी चीज में करंट घुसने के लिए क्या चीज एनकाउंटर करना पड़ता है? रेजिस्टेंस। आ जाओ, सुनो, मोबाइल का रेजिस्टेंस ऐसा डिजाइन है कि उसमें से 5 वोल्ट का अगर मैं लात मार दूं ना, तो 3 एम्पियर खुशी खुशी गुजर जाता है। ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस हाई है, इसमें अगर 5 वोल्ट हम पुश करें ना, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। ह्यूमन बॉडी ऐसा चोक्ड है रेजिस्टेंस। कितना का किक आ रहा है? 5.1 वोल्ट। 3 एम्पियर का मुंह कैसा हो गया? सर हम तो जा ही नहीं पा रहे इंसान को शॉक देने के लिए। मोबाइल के केस में रेजिस्टेंस कैसा है? ऐसा है, 5.1 वोल्ट का किक मारा और 3 एम्पियर चला गया अंदर। लेकिन यहां डिफरेंस क्या है? किक 240 का लग रहा है भाई साहब। अब लेकिन 0.27 एम्पियर आपके शरीर में खुशी खुशी घुस जाएगा। हम 0.3 एम्पियर में भी मर सकते हैं। हम करंट से मरते हैं, वोल्टेज से नहीं मरते हैं। लोग कहते हैं सर करंट से मरने से तो यहां भी मरना चाहिए था। अरे भूतनी के, यहां इसलिए नहीं मर रहे क्योंकि ये करंट घुस ही नहीं रहा है हमारे बॉडी में, ये मोबाइल में घुस रहा है। हमारे बॉडी में घुसाने के लिए और जोर से मारना पड़ेगा, जो कि है 240। Now do you understand how you get a shock? You are not killed by voltage, you are killed by the current.
इफ अराउंड 1 एम्पियर करंट ऑल्सो एंटर्स योर बॉडी ना, दिस इज सफिशिएंट टू किल यू। और जब लीथल चेयर पे बिठाते थे यूएस के डेथ पेनल्टीज में, वहां पे और क्या करते थे, हेड को शेव कर देते थे, और जो कुशन होता है ना वैसा एक सॉल्ट कुशन लगा देते थे हेड पे, सॉल्ट कुशन पांव पे, और फिर दोनों साइड से वोल्टेज देते थे 10,000 के ऊपर, धड़ाधड़ करंट जाता है आपका, और बिकॉज डेथ हैज टू बी पेनलेस। मेनी पीपल डोंट डाई इन 1 जोल्ट। बाद में यूएस ने ये निकाल दिया, पहले यूएस का होता था ना एग्जीक्यूशन चेयर, दैट वाज देयर डेथ पेनल्टी, क्वेश्चन के लगाते थे ताकि और अच्छा कंडक्ट करे आपके हेड। कुशन को सॉल्ट वाटर में डुबो के एकदम इमरती की तरह लाके सर पे रखते थे, चाशनी की जगह सॉल्ट वाटर है। तो मतलब कि 0.1 एम्पीयर भी मार सकते हैं अगर वोल्टेज हाई है। आप मरोगे अराउंड से, ये सब अराउंड 0.5 एम्पियर इज सफिशिएंट टू किल अ ह्यूमन बीइंग। लेकिन हम 0.2 से मार जाएंगे। हाँ, वोल्टेज काफी हाई, इससे भी ज्यादा खींच लेगा ना। ये तो एक आर्बिट्ररी डेटा दिया आपको 65 वॉट्स का, अराउंड 0.7 वॉट एम्पियर इज सफिशिएंट टू किल यू। तो मतलब कि एक्चुअली ऐसे अगर ऐसा होता तो यू विल नॉट डाई बट बहुत यू विल डाई, इससे ज्यादा ही जाता है फैन में, थोड़ा और ज्यादा। आई गिव यू अ डेटा ऑफ 65 वॉट, द फैन माइट बी यूजिंग लिटिल बिट मोर आल्सो। 0.8 एम्पियर इज सफिशिएंट टू किल यू, sufficient to kill you. 240 volts. Again you are asking it wrong. That has nothing to do voltage. I have to make 0.8 ampere current enter your body. For it, that required voltage has to be supplied. And 240 is found a sufficient voltage to allow currents of 0.8, 0.1 ampere से भी ज्यादा आपके बॉडी से चला जाएगा। 5.1 is not even बहुत कम है। 80 वोल्ट के ऊपर से आपको जोल्ट लगना शुरू हो जाएगा। If the voltage is more than 80, the amount of current that will run through your body is sufficient to jolt you. यूएस में भी तो लोग शॉक खा के मरते हैं, वहां तो 110 वोल्ट आ रहा है। ह्यूमन बॉडी का फ्लैश का रेजिस्टेंस रहता है अराउंड 5000 ओम्स के आसपास, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप पसीना वसीना होके आते हो घट जाता है, और टिश्यूज का और कम रहता है, स्किन का थोड़ा कम। जैसे रिक्शा वाला को लेके आओगे तो उसका पाँव टाइट होता है, लेकिन उसका अंदर तो सॉफ्ट ही रहेगा। नाउ डू यू अंडरस्टैंड, यू गेट किल। सो if this mobile charger's voltage was sufficient to drive 3 ampere, you would have become a french fry by now. You will die at 0.8 ampere, ये तो 3 एम्पियर छोड़ रहा है, but this kick is not sufficient to enter 3 ampere through you. इसके लिए sufficient है। अच्छा बोलो, तुम अभी बड़े हो गए हो ना, अब तुम्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए पापा एक चांटा मार सकते हैं, पर एक चांटा से तुम्हारा दांत निकलेगा क्या? अभी इस उम्र में नहीं, लेकिन छोटू बच्चों को अगर एक चांटा मारो तो दांत निकलेगा ना, वो है लीथल। It's basically like अगर बच्चे को पकड़ा दी और हाँ, बड़े तो ह्यूमन बॉडी के लिए 1 एम्पियर में इंसान मरेगा, लेकिन ये वोल्टेज सफिशिएंट नहीं है। वोल्टेज आपको काफी जैकअप करना पड़ेगा। 5.1 एनी यूएसबी इज अ 5.1 वोल्ट आउटलेट, दैट्स द स्टैंडर्ड नॉर्म। हाँ, 240 वोल्ट्स हाँ, वो अंदर पे वो 240 को स्टेप डाउन करेगा 5.1 पे, और फिर एसी को डीसी भी कन्वर्ट करेगा, ठीक। सो two more things, applications of heating effect. Now heating effect कहाँ यूज करते हैं? one is in toasters, then one is in electric bulb। हालांकि यही सब पुरानी चीजें सीबीएसई पढ़ाता है, जो कि आजकल कोई नहीं पढ़ता है। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, जिसको एडिसन ने बनाया था, द इलेक्ट्रिक बल्ब, राइट। सो द इलेक्ट्रिक बल्ब में ऐसा और ऐसा, एडिसन को बहुत टाइम लग गया इस फिलामेंट को। ये फिलामेंट ऐसा है कि ये हीट होके जलता है पर बर्नआउट नहीं हो जाता, इट ग्लोज। सो इलेक्ट्रिक बल्ब विल हीट एज वेल एज लाइट भी आपको देगा। सो दिस इज मेड अप ऑफ समथिंग कॉल्ड टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल होता है W, टंगस्टन, टंगस्टन। और इसको अंदर इनर्ट करने के लिए ओरिजिनल बल्ब्स को आर्गन से बनाया जाता था, नहीं तो कंबस्टन हो जाएगा ना, ऑक्सीजन आप डाल ही नहीं सकते हो, भस्मासुर हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इनकैंडेसेंट बल्ब। ये हमारे बचपन में जो आता था, आजकल स्टाइल के लिए आइकिया में दिखता है एक दो, बड़े महंगे होते हैं, पर दिस इज कॉल्ड एन इनकैंडेसेंट लैम्प। ये हो गया। एंड लास्ट, गिव मी चिल्ड्रन सम टाइम टू कवर वन मोर टॉपिक। एक और बढ़िया चीज होता है जिसको हम कहते हैं फ्यूज। ये भी अभी और नहीं है टेक्निक, बट स्टिल लर्न इट। फ्यूज इज समथिंग लाइक अ वायर लाइक दिस, ठीक है, ऐसा ऐसा। नाउ सपोज दिस इज
दिस इज एक सर्किट है, सर्किट में हम एक चीज लगाते हैं फ्यूज। अब मान लो कैसा है फ्यूज, कैसा है, आपने वो सब मूवीज देखा है ना जहां राजा के किले में हमला हो जाता है, ठीक है, और राजा ऐसे लड़ाई कर रहा है तो पीछे से एक सैनिक आके राजा को मारने ही जाता है तो एक सैनिक आके महाराज करके वो पहले ही भाला खा लेता है, वीर गति को प्राप्त। फ्यूज वैसा है, फ्यूज खुद मर के आगे के अप्लायंस को बचाएगा, महाराज करके ये खा जाएगा। तो महाराज कैसे खाता है जरा देखो। तो ये फ्यूज हम क्या करते हैं, जैसे हम कोई कॉस्टली चीज है, हमारा एलईडी टीवी है या एलसीडी टीवी है, उसमें जो सप्लाई जा रहा है ना, दिस इज माय कॉस्टली अप्लायंस, उसको मैं फ्यूज के जरिए लेके जाऊंगा। सो फ्यूज में कैसा रहता है, फ्यूज में ये वायर जो है इसकी रेजिस्टेंस एकदम लो रहेगी, एज इफ इट विल नॉट ब्लॉक एनी करंट। जाओ भैया, करंट जितना जाना है जाओ। हाउएवर लाइक दिस इज अ हाई रेजिस्टेंस वाला, इसका रेजिस्टेंस लो रहेगा और ये एक ऐसे एलॉय से बनता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा। नाउ सपोज ड्यू टू सम रीजन देयर इज अ करंट ऑफ से 1 एम्पियर व्हिच शुड पास थ्रू दिस अप्लायंस, किसी कारण से हाई करंट पास हो गया तो ये फ्यूज को क्या हो जाएगा, ये हीट अप हो जाएगा, हीट होते ही इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, ये ब्लो आउट हो जाएगा और अप्लायंस को बचा देगा। लेकिन जो यहाँ अगली बार आपको इसको निकाल के फेंक के एक और फ्यूज लगाना पड़ेगा। तो दो तरह के फ्यूज आते हैं, एक होता है फ्यूज वायर जो कि आजकल आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा, और एक होते हैं छोटे छोटे फ्यूजेस। लाइक इफ यू रन कार, गाड़ी में भी फ्यूज होता है, एंड मेनी पीपल, क्या 99% पीपल डोंट नो, आपके गाड़ी के बिल्कुल सामने डैशबोर्ड के नीचे एक फ्यूज बॉक्स है, एक नहीं 12-14 फ्यूज रहेंगे उसमें, इग्निशन फ्यूज, हेडलैम्प फ्यूज, इंडिकेटर फ्यूज। एक बार मेरा ही दिल्ली में हो चुका है, पुराने जमाने में मारुति 800 लेके मूलचंद फ्लाईओवर में गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, गाड़ी और स्टार्ट नहीं हो रहा है, हेडलाइट जल रहा है, हॉर्न जल रहा है, और पीछे से लोगों का किकी पपाप ऐसे गाली देना शुरू। तब एक टैक्सी वाला आके मुझे बोला, सरदार जी, वो जी फ्यूज चली गई है। तो मैं तो इतना इंजीनियरिंग सोच रहा था, उसने मुझे खोल के दिखाया ये फ्यूज बॉक्स, and Maruti gives you two, this was my Jija's Maruti 800, they give you 2 spare fuses also। वो फ्यूज को उठा के लगाना था। फ्यूज रहता है, बाइक में रहता है, गाड़ी में रहेगा, सब में रहेगा। ड्यू टू सम रीजन हाई करंट केम एंड द फ्यूज ब्लू ऑफ। लेकिन हाई करंट आता क्यों है? हो सकता है शॉर्ट सर्किट से हाई करंट आ जाता है, सम एनोमली इज देयर। और अगर फ्यूज लगाते फिर से फट रहा है, उसका मतलब तो भैया तुम पहले गाड़ी को धकेल के साइड करो, तुम्हारी गाड़ी में फॉल्ट है। सो दीज आर, तो हम लोग जब बचपन में हमारे घर में रहते थे, हमारे घर में ट्रिप स्विच नहीं होता था, वी यूज्ड टू हैव दिस फ्यूजेस। जैसे फ्यूज चला गया तो फिर वायर लगाओ। अब उसमें कोई डेढ़ सियाना आदमी क्या करता था, कॉलोनी का कोई लड़का है, ही नोज इलेक्ट्रिसिटी, उसको बुलाओ, वो आके यहाँ पे कोई भी एक वायर लगा देता है, घर वाले खुश, लाइट तो जल गया घर का। लेकिन अगली बार जब हाई करंट आएगा, ये ब्लो नहीं होगा, ये ब्लो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये ब्लो नहीं होगा, ये ब्लो हो जाएगा, क्योंकि उसने ऐसा एक पहरादार लेके आया, उसके पास भाला लाने से मारे, क्यों महाराज को मारिए, आप तो महाराज को मारेगा जाके। समझ आया? महाराज को मारो, ये दैट विल बी द केस। सो फ्यूजेस कम इन रेटिंग्स। ये जो फ्यूजेस हम खरीदते हैं 1 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, माइक्रोवेव में बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। आप माइक्रो ऑन करते हो, माइक्रो में पावर नहीं आ रहा है, कोई बड़ा कुछ नहीं हुआ, आपका फ्यूज ब्लो अप हो गया होगा। फिर एलजी का टेक्नीशियन आके विजिट 500 रुपीज लेगा, एंड मैम बाहर ये इसका दाम कितना है, 2 रुपये, 2 रुपये इज दिस कॉस्ट। सो व्हाट इज अ फ्यूज? A fuse is a wire of low resistance with low melting point. Why low resistance? It should not block the current. Jao. However, if there is any increase in current, it uses the heating effect of current. The temperature of the fuse wire rises, melting point is low, so the fuse wire blows up, thereby protecting your appliance. आजकल फ्यूज वायर्स की जगह हम क्या यूज करते हैं? हम ट्रिप स्विचेस यूज करते हैं। जैसे आप घर का वो ट्रिप स्विच खोलोगे, उसमें 9 एम्पियर का रहेगा, 20 एम्पियर्स का रहेगा। हाँ, तो उसमें अच्छा ही क्या है, वो बार बार आप यूज कर सकते हो। एक बार ट्रिप हो गया तो साथ साथ गधे की तरह जाके उसे ऑन मत करो, जिसके लिए ट्रिप हुआ उसको आइसोलेट करो। सपोज ऐसा हो रहा है घर पे कि हम गीजर ऑन करने से ट्रिप करता है, फिर आप जाके बार बार उसे उठा रहे हो, वो नहीं उठेगा। फिर मेरे ऑफिस के कोलीग ने एक बार मुझे कहा, मैं स्क्रू ड्राइवर से भी कोशिश किया, वो नहीं उठा। मैं गधे हो,
गीजर को बंद करो और कट करो, अब जाके उठाओ, क्योंकि ही इज रिकॉग्नाइजिंग दैट फॉल्ट ना. You switch on the geyser, it trips. So what should you do? You should first switch off the geyser and then again put it up. Now switch on, again it is tripping. Now you understand geyser is the culprit. So isolate the geyser from the house and then use it. Our people, what they will do? उठा रहा हूँ, उठ नहीं रहा है. अच्छा व्हाट्सएप कॉल करो, यहाँ ये देखिए उठा रहा हूँ, उठ नहीं रहा है. आप कहाँ से हो? Actually I did my computers and right now I am in IT, I am doing this. क्या लाभ हुआ? राजिंदर जीत गया. हमें बड़ी इज्जत लगती है जब राजिंदर हमारे सामने ज्यादा बोलता है ना, मेरा खून खोलता है. और अगर आपका खून नहीं खोलता है ना, तो यू आर अ गुड स्टूडेंट. यू नेवर हैव अ इंच फॉर इंजीनियरिंग. यू शुड स्टडी समथिंग एल्स. यू आर अ गुड स्टूडेंट. आप गिटार भी अच्छा सीखोगे, पर आप में इंजीनियरिंग का नैक नहीं है. फरहान कुरैशी हो, फोटोग्राफर अच्छे बनोगे, कोई शर्मिंदगी नहीं है उसमें. दैट्स व्हाई आई से take a subject which you love, and if you get a job in the subject you love, then you are 3% of the lucky people. You will never age, you will never have stress, you will love your job. Today half of the people don't love their job, but they have a compulsion to do it. क्यों? हमने यूनिटेक का वो फ्लैट बुक किया ना, उसकी EMI, क्रेडिट कार्ड की EMI, यूरोप गए थे ना उसकी EMI, कार लोन का EMI, प्लास्टिक की तो जिंदगी जी रहे हो बैठ के. इसलिए रोज उसी ऑफिस, छोड़ो यार वो खसूट बॉस आ गया, यार हाय बॉस हाउ आर यू. अगर वो चीज नहीं चाहिए तो किसी एक चीज को प्यार करके पढ़ो. आई विल नॉट टच मैग्नेटिज्म, हम लोग शुरू करेंगे अगले चैप्टर में. सो इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, फ्यूज हो गया एंड नाइक्रोम, दैट्स इट. बट वंस वी, मैग्नेटिज्म इज अ वेरी शॉर्ट चैप्टर फॉर अस, वेरी शॉर्ट, सब कुछ निकाल दिया गया है. We have to do lot of numericals. So अगला हम एक दो क्लास ना इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे, बोर्ड ओरिएंटेड, and that time we will use all the formulas. 2 additional formulas have been added to you today. H is equal to I square RT, and in that case H is measured in joules, T is in seconds. ये समझ में आया? तो अगली बार अगर 2 एम्पियर का चार्जर लेके दोस्त के घर में जा रहे हो और उसका 3 एम्पियर है तो खुशी खुशी लगा लो, कुछ नहीं होगा. 3 एम्पियर भी 2 एम्पियर में करेगा, स्लो चार्जिंग होगा, प्लस वो गर्म भी हो जाएगा. फटने का कोई चांस नहीं है. फटेगा क्यों? गर्म हो जाएगा, कोई फटेगा नहीं. आपको चाहिए 2, आप सप्लाई कर रहे हो 1.5. आप अंदर नहीं जा रहा था नहीं. तो अलग बात है, वो तो बात ही अलग है. वो रोटी की जगह वो तुम्हें गोबर की रोटी दे रहा है तो तुम थोड़ी खाओगे. बात तो वही हुई. ठीक है, राइट हो. सो विल क्लोज टुडे. And in our next 2 classes we will devote, because magnetism does not have any numericals. Numericals are all in this chapter और extensively आते हैं. So हमें resistance के प्रॉब्लम करने हैं, combination के प्रॉब्लम्स करने हैं, power के प्रॉब्लम करने हैं, heat के प्रॉब्लम करने हैं, and then we start magnetism. Magnetism 3 to 4 classes will be done. ठीक है.